if Manish Bariyar is still on the show with me. We'll try to go to him in just a short while. Okay, Manish is here with me, and Manish, let's understand from you, the dynamics of the NDA, where we see JDU, which has traditionally been the bigger party, and BJP has played a junior role. And we'll take a look at the NDA government that was formed, and an integral cog of this NDA government was Nitish Kumar and the JDU. Do you think that could be a decisive factor in naming the chief minister if NDA wins this election? Absolutely not. If you see, even last time elections, we had around 71, 72 seats, and JDU had around 43. And still, there was no confusion as far as leadership is concerned. So there is a very good model and good understanding, in NDA. And the Prime Minister himself requested Nitish ji that you take over the mantle, because leadership is very, very important. And therefore, there is no question. So if that last time, if it could happen, then there is no question of future, because last time itself gave an example of how we are looking at the development of Bihar and the best interest of the people of the state, rather than quibbling about who's going to be the leader in a leadership position. Whoever commands respect, authority from the people of Bihar, and whoever's face we contest the election. For example, national election, there's no vacancy out again. Under the leadership of Prime Minister Modi, we contest. So nobody questions. Here also, for the last 20 years, there's been no question at all. So I don't think that is going to be an issue at all. Okay, all right. Manish, stay on with me. I have with me my reporters. I'll request all my panelists to stay on into in this telecast. Brian is in Musalapur Haat. This is in Patna. All right. Okay, we went to Brian and Sharendra just a while ago, and now we have with us Anand Singh. He's in Mokama, and Ritesh Mishra, who's in Chhapra. Anand, coming to you. Mokama, important seat. And what does it look like? What are the key issues that the people are voting on the basis of? And more importantly, this is a controversial seat, because Anand Singh, who is largely termed as a Dawn-turned politician, and of course talking about the recent controversy with regards to the Suraj Party supporter being killed, and Anand Singh was put behind bars on the allegation of murdering this supporter. Yeah, Megha, look, this is one of the sensitive seats in Mokama, in Bihar especially. So clearly, the mood here at this polling booth, you can see that how people have now started turning out in huge numbers, as there are several of the voters who are standing in queue to exercise their right. And we spoke to a number of voters over here earlier, Megha, and you know that how they mentioned that development and peace is one of the most important factor here in Mokama, as in the last few days they had clearly mentioned that how the murder of Dular Chand Yadav, the supporter of Jan Suraj Party, was killed, and following which Anand Singh was arrested. So clearly there are a number of voters here in the queue. We will try to speak to them and try to understand that what are the issues that's going on in their mind before polling. Sir, आपका नाम? मनोज कुमार। आप वोट देने के लिए आए हुए हैं, क्या आपके मन में चल रहा है? विकास हुआ है या मोकामा में और विकास होने अभी बाकी? मोकामा का विकास एकदम रुका हुआ है 15-20 साल से। हम लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, और भी वोटर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप भी वोटिंग के लिए खड़े हैं, यहाँ काफ़ी सेंसिटिव सीट भी है, और ऐसे में मोकामा की बात हम खास तौर पे करें तो काफ़ी लोग यहाँ कह रहे हैं यहाँ का विकास रुक गया है, अस्पताल नहीं है। तो क्या मुद्दे आपके हैं इस बार चुनाव में? किस मुद्दों के लिए आप वोट करेंगे? मुद्दा विकास ही है, और ऐसा नहीं है कि विकास हुआ नहीं है, लेकिन विकास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमाया और पूरी तरह से रोम बन गया। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसको बनने में समय लगता है, लेकिन जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए वो रफ्तार नहीं है। रफ्तार नहीं, लेकिन विकास हुआ है, ये हम नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है। जैसे जिस तरीके से मोकामा की एक आइडेंटिटी बन गई है अनंत सिंह और ये परसेप्शन बनाना बाहुबली का काम है। ये परसेप्शन बनाना, ये नैरेटिव आप सेट करते हैं, क्योंकि आप जो चलाएंगे पूरी दुनिया देखती है।
अच्छा, यहाँ पे ऐसा ग्राउंड पे कुछ वैसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं था, कभी कभी था, ये भी हम इससे भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम 20 साल के बाद बच्चे नहीं हैं हम। हमारा समय, हमारी उम्र 40+ की है, तो हमने सब देखा है। तो कभी वो समय भी था, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं है। ये नैरेटिव जो एक सेट कर दिया गया है, उससे उसको निकालने की जरूरत है। सर आप भी हैं, वोटिंग आपने कर ली या अभी भी आप कतार में ही हैं, जाएंगे वोट करने के लिए? मुद्दा क्या रहेगा आपका इस चुनाव में जिस पे आप वोट करेंगे? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। मोकामा में विकास हुआ है लगता है 20 साल में जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं? विकास नहीं हुआ है। विकास का जरूरत है, एक मौका तेजस्वी यादव को दिया जाए। ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आप लोग भी आए हैं वोट करने के लिए, क्या मुद्दे आपके मन में चल रहे हैं वोटिंग करने के पहले? अरे मुद्दा क्या चलेगा, यहाँ सब कुछ होगा, व्यवस्था। जो मरते रहता है आदमी उसके लिए हॉस्पिटल करेगा, गली कुची बनाएगा, जो सरकार देगा वो बनाएगा। मेरा बेटा सब दिन बनाया है, अभी भी बनाएगा, और क्या मुद्दा रहेगा। जिस तरह से नीतीश बाबू कहते हैं 20 साल में हम बहुत विकास कर दिए बिहार का। नीतीश बाबू किए, लेकिन नीतीश बाबू जो जिसको दिए वो अपने पेट में रख लिया, तो नीतीश बाबू इसमें क्या करेंगे। नीतीश बाबू ठीक ही है, लेकिन नीतीश बाबू क्या करेंगे से बताइए। आपको कुछ जेबी में हम धर दे, आप अपने खा जाइएगा और मीडिया वाला को नहीं दीजिएगा, तो क्या पता। नीतीश बाबू सब जगह तो नहीं घूमते हैं। यहाँ मोकामा की अगर हम बात करें खास तौर पे, तो काफी लोगों ने शिकायत की। इलाज है बीना देवी, अगर मोकामा अपनी बहू को जिताना चाहेगा तो अच्छा रहेगा, जीतेगी भी, सब दिन जीतते आए हैं। अब जाने मोकामा के पब्लिक जनता उस पर भरोसा है हम लोग का, और क्या कहें। और लीजिए सर, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कीजिएगा? विकास की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, लोगों को नौकरी देने की बात होती है, तो आपको लगता है इन सारे पैरामीटर्स पे सरकार पास हो गई है? अब जो देगा जो करेगा से करेगा, जिसको विकास हुआ है? हाँ, जिसको देना है उसको दे दिए हैं। Okay. विकास हुआ है मोकामा में या रुक गया Anand है? continues his interactions with the people who have come to cast their ballot. I'm quickly going to head to Chhapra in Bihar. Ritesh Mishra joins me on the show. He is on the ground. He has been covering non-stop the voting in phase 1 in Bihar elections. Ritesh, अभी इस समय क्या माहौल है? हमें पता लग रहा है कि ओवरऑल 13.13%, 13.13% अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट हो गया है। अब बिल्कुल देखिए कि अभी 9:30 हो रहे हैं और 13.13% वोटिंग हुई है। ये अच्छा ट्रेंड है और सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं कि मैं शहर में भी जा रहा हूं, मैं अभी छपरा के गांव में हूं, छपरा शहर में थोड़ी देर पहले था, लेकिन जो वोटिंग का ट्रेंड है आप देखेंगे कि वोटर्स बड़ी तादाद में अगर कंपेयर करें तो शहरों से ज्यादा वो गांव में दिख रहे हैं। ये देखिए कि ये एक बूथ है, एक गांव का बूथ है और यहाँ पर बड़ी तादाद में वोटर्स जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है। ये तस्वीर जो है ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। वोट दे दिया है कि वोट अभी जाना है देने जाना है। क्या मुद्दा है? आप तो युवा हैं, युवाओं के ही नाम पर तो चुनाव लड़ा जाता है। युवा क्या चाह रहा है, किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे आप? जो समझ में आएगा दे देंगे, अभी क्या बताएं। आप तो एक बात, युवा है ना, तो युवा थोड़ा जोश से बोलता है। क्या है, क्या मुद्दा है? कुछ तो मुद्दा होगा ना। युवा के ही देंगे, युवा के ही देंगे। किसी को दीजिए, वो हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? चलिए बुजुर्ग हैं आप, आपका क्या मुद्दा है? किस आधार पर वोट आज करेंगे? क्या सोचकर वोट करने जाइएगा? वोट गिराना हमारा काम है। काम तो है, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन किस लिए वोट करने जाते हैं? कुछ तो सोच के आए होंगे ना कि जाके भाई क्या करना है, डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जाति चाहिए, सरकार चाहिए। जाति उति को कुछ नहीं है, वोट गिराना में ना, वोट गिराना है हमको। आप बताइए, आप तो बीच वाले हैं, ना बहुत ज्यादा यंग है ना बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे, किस आधार पर वोट करेंगे? जो रोजगार दे। रोजगार अभी तक नहीं मिला। यहाँ बिहार में क्या रोजगार है? कुछ है यहाँ पे? कुछ नहीं है अभी तक, इसीलिए जातिवादिता नहीं है। रोजगार कौन दे?
सरकार जो आएगा, नया सरकार है वही देगा। चलिए समझ गए। देखिए महिलाएं भी हैं, बड़ी अच्छी तस्वीर है, आधी आबादी भी पीछे नहीं है, बराबर बराबर लाइन है। आप आई हैं आंटी वोट करने, क्या सोच के अंदर वोट करेंगी? मुद्दा है आपका? सुनिन तो पूछा ही करे वो लोग के ना चाहे कि तू केकरा में देता रहा। पर जोन बोलेगा बोली ना, हम ये नहीं पूछत कि केकरा के वोट करें, क्या सोच के वोट दे आइल बनी सब देहम सर। चलिए हम कहाँ रोक रहे हैं आपको वोट करने से। Okay, while Ritesh speaks to the people on the ground, women and men both have come in.